Hi everyone, welcome to Besides Academy. So in this video we are going to launch a course on modern Indian history, and this course is based on a book called A Brief History of Modern India, which is written by Rajiv Ahir. So in this course we are going to cover the modern Indian history from the prelims as well as mains perspective. So we are going to cover modern Indian history in a very comprehensive manner, and we are going to solve the previous year questions which is asked in prelims, and we are also going to solve the mains questions. So we are also going to do answer writing based on the previous year question and solve the previous year question which asked in prelims as well as model question which is asked in our test series. So you can join our test series to make your preparation for UPSC and state PCS examination like BPSC, UPPSC, JPSC and other state examination. So in this video we are going to cover the past 23 years का जो पेपर आए हैं उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, और on the basis of that we are going to formulate the strategy that how we have to approach the modern Indian history. So इसमें हम लोग ये देखेंगे. So let's start this video. So first of all we going to saw the detail of syllabus which is given by UPSC for the history. सो प्रीलिम्स में देखोगे तो जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत ही शॉर्ट है. ये केवल बोलता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है. लेकिन मेंस में हम लोग को थोड़ा ब्रीफ में यूपीएससी में जो सिलेबस है उसमें दिया गया कि इन हिस्ट्री हम लोग को क्या क्या कवर करना है. तो इसमें बोला है कि इंडियन कल्चर विल कवर salient aspect of art form, literature, architecture from ancient to modern times, and this part basically forms the ancient history plus art and culture. So art and culture plus ancient history, और ancient to modern हम लोग को जो architecture पढ़ना है वो art पढ़ना है. फिर तुम्हारा modern history में हम लोग पढ़ना कि modern Indian history from about middle of 18th century to until the present significant event, personalities and issue. The freedom struggle, its various stages, and important contribution from different part of the country. पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग को बोला गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री. सो ये पोर्शन comes under post independence portion. And for the world history, okay, it says that history of world will include event from 18th century such as industrial revolution, world wars, retrieval of national boundaries, colonization, decolonization, political political philosophies like communism, capitalism, socialism and their various forms and effect on the society. So ये सभी जो सिलेबस में यूपीएससी में हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग को इस सब को हम लोग डील करेंगे. So this video is presented by me, Manish Chaudhary, and this video is all about the strategy to prepare history for prelims as well as your mains, which is comes in GS paper 1. And if you look the history, then history is divided into 5 parts called ancient history, medieval Indian history, modern history, world history and post independence. So world history and post independence having more weightage in mains. There is a very few questions asked from post independence, like in 2082 question asked in post independence. So वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो वेटेज है वो मोस्टली मेंस में है. वन क्वेश्चन बेसिकली कम्स फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वन क्वेश्चन आस्क फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. सो एंशियंट हिस्ट्री में तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर भी आता है. So while we covering the ancient history, we are also going to cover art and culture, medieval history, modern history. So these are the 5 parts. और वेटेज देखोगे तो 50 to 20% जो क्वेश्चन होते हैं इन प्रीलिम्स में वो हिस्ट्रीज होते हैं. जैसे 6 to 7 क्वेश्चन तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर पर एंशियंट्स होता है, 2 to 3 क्वेश्चन मिडिवल्स होता है, 7 to 8 क्वेश्चन तुम्हारा मॉडर्न्स होता है. तो ऑन एन एवरेज 50 to 20% तुम्हारा जो वेटेज होता है वो हिस्ट्री का पोर्शन होता है. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू गिव मोर फोकस ऑन हिस्ट्री. And in this
video we are going to cover the previous year question, that how the pattern of previous year question. So and you can read this book, India's Struggle for Independence, which is written by Bipin Chandra. This book is very lengthy book and time consuming, और बहुत it is very difficult to read, make notes, because कोई भी point wise में दिया गया नहीं है, तो time consuming है. So that is why we choose a brief history of modern India spectrum. सो ईयर वाइज हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन कौन साल में कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं. सो 2014 में आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन है, 2015 में 2 क्वेश्चन, 2016 में 3 क्वेश्चन, 2017 में 5 क्वेश्चन एंड 2018 में 6 क्वेश्चन, टोटल 26 क्वेश्चन. सो ऑन एन एवरेज आर्ट एंड कल्चर से 6 to 7 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं. फिर एंशिएंट हिस्ट्री से 2014 में 2 क्वेश्चन, 2015 में 1 क्वेश्चन, 2016 3 क्वेश्चन, 2017 1 क्वेश्चन, 2018 कोई भी क्वेश्चन नहीं. सो while we covering ancient history, we are also going to cover the art and culture, but we give more emphasis on art and culture, and we do not give the importance to political history of ancient India. So that is why we have to more emphasis on art and culture area, because in mains also many 1 to 2 question asked from art and culture, and there is a rare chance that question comes from ancient history. In medieval history 2014 में 2 क्वेश्चन, 2015 में 4 क्वेश्चन, 2016 4 क्वेश्चन, 2017 1 क्वेश्चन, 2018. सो इन प्रीलिम्स में जो मिडिवल हिस्ट्री का जो वेटेज है वो ह्यूज नहीं है. दैट इज़ वाई वी डज नॉट गिव मोर फोकस ऑन मिडिवल हिस्ट्री, बट वी हैव टू कवर दी मिडिवल हिस्ट्री, बिकॉज जब प्रीलिम्स में 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यू डज नॉट नो, आप उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा. सो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि 2 क्वेश्चन केवल एंशिएंट हिस्ट्री से आता तो हम एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिडिवल से आता तो नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा करेंगे तो हम लोग पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का वही पैटर्न है. तो वी हैव टू कवर. बस ये होना है कि हम लोग को किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट में कम फोकस करना है. सो मिडिवल हिस्ट्री में जैसे 2 to 3 क्वेश्चन है, इसमें भी इंपॉर्टेंट एरिया लाइक भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, फिर की टर्म्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली सल्तनत. सो ये सभी एरिया को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन वी डज नॉट गिव मोर इम्पोर्टेंट टू पॉलिटिकल हिस्ट्री. उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इन सभी को हम लोग को देखना है. ठीक है. फिर मॉडर्न हिस्ट्री में तुम्हारा 2014 में 5 क्वेश्चन है, 2015 में 8 क्वेश्चन, 2016 में 6 क्वेश्चन, 2017 में 7 क्वेश्चन, 2018 में 12 क्वेश्चन. सो ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन आस्क from modern history, and it has huge weightage on mains also. That is why we have to give more focus on modern Indian history. और पोस्ट इंडिपेंडेंस में रेयरली 2018 में 1-2 क्वेश्चन आए थे. सो वी डज नॉट हैव मच वरी अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर द फिल्म्स, एंड वी हैव टू कवर पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. और मेंस में अगर मॉडर्न हिस्ट्री का अगर वेटेज देखोगे 2014 में 3 क्वेश्चन है, 2015 में 3 क्वेश्चन, 16 में 3 क्वेश्चन. सो मेंस में भी हिस्ट्री का वेटेज अच्छा है. एंड फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट है कि हिस्ट्री, वंस यू कवर हिस्ट्री इट नॉट गोइंग टू चेंज. सो 1 या 2 रेफरेंस बुक पढ़ ली, उसी को हम लोग 5 से 6 बार रिवाइज करेंगे और फिर आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे. सो दैट इज़ अनफ. दिस इज़ द 23 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एनालिसिस है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं उसका ये डाटा है. सो 1995 में 8 क्वेश्चन है, 1996 में 20 क्वेश्चन, 2005 में 18 क्वेश्चन. लेकिन हम लोग को जो देखना है वो 2013 के बाद का देखना है, क्योंकि 2013 में जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है. और अगर तुम देखोगे जैसे 1996 में 20 क्वेश्चन है, 2005 में 18 क्वेश्चन है. तो हम लोग को ये इसमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन है किस प्रकार का आ रहा है.
व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क, हम लोग को जो क्वेश्चन का जो टाइप है उसको पकड़ना है, लेकिन ये नहीं पकड़ना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क। क्योंकि अगर तुम देखोगे 1996 में 20 क्वेश्चन है, 1998 में 19 क्वेश्चन, 1999 में 19 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि अभी भी ये 90 और 20 क्वेश्चन आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, नहीं। पैटर्न चेंज है, 6 to 7 ऑन एन एवरेज हम देख सकते हो कि 2013 में 6 क्वेश्चन है, 2014 में 4 क्वेश्चन है, 2015 में 8 क्वेश्चन, 16 में 5 क्वेश्चन, 2017 में 7 क्वेश्चन, 2018 में 12 क्वेश्चन, तो ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वी डोंट गिव मोर फोकस ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन को पैटर्न को पकड़ करके हम लोग को अपना जो स्ट्रेटजी है वो मॉडर्न हिस्ट्री को उसको प्रिपेयर करना है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और दिस इज़ अ टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ लास्ट 23 ईयर्स पेपर, और ये सभी सब टॉपिक्स हैं। और हम लोग को देखना है कि कौन कौन की एरिया से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने आए हैं। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 से 8 क्वेश्चन है। सो 23 ईयर्स में ओनली 8 क्वेश्चन। सो वाइल वी कवरिंग हिस्ट्री वी कवर 1857 revolt, but do not give more focus on this area. Then the Charter Acts. So uh, from the Charter Acts comes 20 questions. So that is why we have to give the focus on this area. Religious and social reform again 8 questions. So we does not give more focus on this area. The nationalist movement 50 questions. So we give more focus on this area. Then struggle for Swaraj 42 question. Freedom and partition 48 क्वेश्चन। सो ये सब भी जो टाइमलाइन है, ये सब जो एरियाज हैं उनमें वी हैव टू मोर फोकस। और जो ये रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म है, सो वी हैव टू कवर, बिकॉज इन मेन एग्जामिनेशन दिस पोर्शन विल हेल्प अलॉट। एंड ऐसे राइटिंग में भी हम लोग को ये पोर्शन हेल्प होता है, लेकिन फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम लोग वी डोंट गिव मोर फोकस। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशन। सो 10 क्वेश्चन इससे भी आया, तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सेशन कहाँ हुआ था, इसको प्रिसाइड किसने किया था, कौन से प्रेसिडेंट थे, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था। सो ये सब क्वेश्चन आते हैं। फिर डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल में 14 क्वेश्चन है, तो वी हैव टू फोकस। सो देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट कि अंडर द ब्रिटिश रूल only the India faced the exploitation, but this is not the actual reality. There are something which is there are something which कुछ डेवलपमेंट भी हुए थे, लाइक मॉडर्न एजुकेशन हो गया, पुलिस सिस्टम हो गया, फिर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, फिर पोस्टल सिस्टम, रेलवे, विडो रिमेरेज। तो ये सभी जो डेवलपमेंट है उनको हम लोग को देखना है। फिर लैंड सेटलमेंट, ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट देखना है, इससे 13 क्वेश्चन आए हैं। तो इन सभी एरिया को हम लोग देखेंगे। लैंड सेटलमेंट बहुत से रैयतवारी, मालवारी, तो इन सभी लैंड सेटलमेंट को हम लोग देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो लैंड रिफॉर्म करेंगे तो उसमें हम लोग को देखना पोस्ट इंडिपेंडेंस में। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से 25 क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देखेंगे, लाइक सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। सो इन सभी बाल गंगाधर तिलक। सो उन इस सभी पर्सनालिटी से क्वेश्चन आता है कि उनके राइटिंग्स कौन कौन से राइटिंग्स थे, उन्होंने कब कब इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था, कौन से सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, कौन से सेशन को उन्होंने बॉयकट करा था, जैसे इंडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट करा था। सो ये सभी पर्सनालिटीज से क्वेश्चन आता है। फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 10 क्वेश्चन। सो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बेसिकली कम्स अंडर पोस्ट इंडिपेंडेंस। और मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन। सो मिसलेनियस देयर इज वेरी सम एरियाज जो कि बुक में नहीं होते, वो कहीं से भी पूछ लिया जाता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन विच आस्क्ड फ्रॉम मिसलेनियस, बिकॉज देयर आर सम कि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बुक में नहीं होते, वो रैंडम कहीं से भी यूपीएससी पूछ लेती है। So this is all about this video. So thanks for listening us, and you can subscribe our channel Birsa Academy, and you can follow us on Facebook, Instagram, and you can join us on Telegram.
So thanks for listening us. Thank you.